दादरा नगर हवेली के जो चुनाव थे उसके रिजल्ट आज આવી ગયા છે। હું આ તબક્કે પહેલાં તો દીવ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીની પ્રજાનો હૃદયથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ખાસ કરીને અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના દેવતુલ્ય કાર્યકર્તાઓનો પણ હું હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। રિઝલ્ટ 95% થી પણ વધારે નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત તેમજ સરપંચની ચૂંટણીમાં જે પરિણામ મળ્યું છે તે અભૂતપૂર્વ છે। દેશના પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના કુશળ નેતૃત્વ હેઠળ અહીં છેલ્લા 9 વર્ષની અંદર પ્રશાસક પ્રફુલ્લભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે અકલ્પનીય કામ થયા છે। જ્યારે આજે પણ જ્યારે દિલ્હીમાંથી કોઈ પણ નેતૃત્વ આવે છે અને જ્યારે એ દીવ દમણ અને દાદરાનગર હવેલીના વિકાસની વાત કરે છે ત્યારે એ મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે। આ તબક્કે હું પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ પટેલનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે। ખૂબ નિડરતાથી એવા બધા પ્રશ્નો જે હલ કર્યા છે જે મોટા સિટીમાં ગુજરાતમાં મારી પાસે નથી। હોસ્પિટલ લઈ લો, મેડિકલ કોલેજ લઈ લો, શિક્ષણ ક્ષેત્રે લઈ લો, આરોગ્ય ક્ષેત્રે લઈ લો, રમતગમત ક્ષેત્રે, બધા જ ક્ષેત્રે જે કામગીરી કરી છે પ્રજાએ એને મોર માની છે। જ્યારે મેં ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરવા ગયા ત્યારે અમને એવું હતું કે ખૂબ વિરોધ વંટોળ પ્રચાર દરમિયાન હશે, પણ આપ લોકોના માધ્યમથી કહેવા માગું છું કે અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ અમને પ્રાપ્ત થયો છે। ખૂબ સરસ કમ્પ્લેન હોય તો કહી પણ છે અને એક જ વાત કરે કે ઇલેક્શનને દિવસે કશું જ અમે આપીશું તો મત ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપીશું। આ અમે જાતે જોઈને આવ્યા અને બતોર અમે ઘણી બધી વાત એવી છે કે અમારે કરવા જેવી છે તે આવનારા દિવસોની અંદર અમે ચોક્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો આ ક્ષણે પ્રધાનમંત્રીજીનો પણ જે પ્રકારે 13,000 થી 15,000 કરોડના વિકાસના કાર્ય આ 3 સંઘ પ્રદેશની અંદર ચાલતા હોય તો હું માનું છું ત્યાં સુધી પ્રજાએ એને સાંભળ્યું છે અને પ્રજાએ આ વિકાસના કાર્યને એન્ડોર્સ કર્યા છે એવું કહીશ તો ખોટું નથી। દમણના અને દીવના સંસદ સભ્ય જ્યારથી ચૂંટાયા ત્યારથી રોજ દર અઠવાડિયે કંઈક નવું એક વિષય લઈને તે આલોચના કરે। 1.5 વર્ષ થઈ ગયું। આજે અમનેથી જે પ્રચાર કરવા જતા હતા ત્યાં લોકોએ કહ્યું છે કે સિર્ફ વાતના વડા કરે છે, બાકી કંઈ થયું નથી। અને આજે કોઈ વસ્તુ આજે વિકાસ જ્યારે કરવો હોય તો એને પેપરમાં આપીને રોજે રોજ એને વાગોડિયા કરવાની કોઈ મતલબ નથી। કામ એક પણ કામ થયું હોય તો બતાવો। પ્રજા સારી રીતે ઓળખી ગઈ છે અને લોકસભાની અંદર જે ભૂલ પ્રજાથી થઈ છે આ વખતે સામે ચાલીને કીધું કે અમે ભૂલને સ્વીકારી લઈએ છીએ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત આપે છે। આજે જે આ પરિણામ આવ્યું છે એ આ વિકાસના અનેક કાર્યથી આવ્યું છે। શાંતિ, સલામતી આ બહુ મોટો વિષય છે જે માનનીય પ્રશાસક પ્રફુલ્લભાઈ પટેલે દરેક ઉદ્યોગકારથી માંડીને જાહેર જીવનમાં આજે નમો પથની અંદર બેન દીકરીઓ રાતે 12-1 વાગ્યા સુધી હરી ફરી શકે એકલા, આનાથી બીજું શું જોઈએ। તો આ ક્ષણે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને આપણા પ્રશાસક प्रफुल्ल पटेल હું જેટલો આભાર વ્યક્ત કરું એટલો ઓછો છે। डेवलपमेंट इसके लिए है कि हर दिन डेवलप होता है, तो ये जो छोटी छोटी अभी आपने एक ही रोड के बारे में बताया। इससे अलावा आप देखिए तो वहाँ आप खानविल विस्तार में चलिए, आप खेरड़ी में जाके एक बार रोड देख लीजिए, आप दुधनी पे जाके एक बार रोड देख लीजिए। डेवलप होता है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन ऐसा नहीं कि आज एक जगह पे डेवलप हो गया इसका मतलब वो बंद हो जाएगा। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, आपने हमारा ध्यान जोड़ा है उस पर। हमने बारिश का मौसम अभी भी आप देख रहे थे कि हफ्ते भर पहले ही बारिश हुई है। ये जैसे बारिश खत्म होगी हमारे माननीय प्रशासक के काम में ये चीज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस काम भी हम इसके लिए यही कहना चाहता हूँ। हमने हमारे विपक्ष को नींद में सोए हुए पकड़े हैं। वो ये चाहते थे कि हमारे से नाराज होकर छिटके वो अपने उम्मीदवार बनाना चाहते थे। हमने उसके मंसूबे पे हमने पानी फेर दिया। हमारी प्लानिंग के तहत ही हमने ये काम किया है कि हमने हमारे कैंडिडेट को नहीं, जैसे कि हम अभी हमारी पॉलिसी हम बता सकते हैं कि हमने इंडिविजुअली फ़ोन करके सबको बोल दिया था, जिसको हम टिकट देने वाले थे उनको हमने बता दिया था कि आप तो अपनी तैयारी कर ली। लेकिन हमने जानबूझ के हमारी प्लानिंग के तहत ही हमने किया था कि हमने कोई प्रेस वार्ता नहीं किया, हमने कोई डिक्लेयर नहीं किया। क्या जिसने जो बात खड़ी की है उसको पूछ लीजिए, आपके पास नगर पालिका में 15 वार्ड है, आपके पास 15 उम्मीदवार क्यों नहीं मिले?
उसको पूछिए गोलंडा में आपको क्यों नहीं जिला पंचायत का मेंबर मिला। आप उसको पूछ लीजिए क्या भारतीय जनता पार्टी का 17 फॉर्म कैंसिल नहीं हुए क्या? ये भ्रम फैला रहे थे इलेक्शन के पहले, वो लोगों को गुमराह कर रहे थे कि उसको कहीं वोट मिल जाए। उन्होंने 2024 में यही काम किया था, कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया था और वोट कुछ हासिल किए थे। लेकिन इस बार लोग सचेत थे, लोगों ने विकास को देखा है। मैं आपको बता दूं, क्या हमारे अम्बोली का सरपंच का फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ क्या? मैं खानवेल का हमारे जो 4 पंचायत के वार्ड मेंबर हैं, क्या उनका फॉर्म कैंसिल नहीं हुई? 17 फॉर्म कैंसिल हुए, 17 तो हमने कहीं मीडिया में आके कहीं बाइट ली क्या? गलती हुई होगी हमारे से, हम मान लेते हैं, हम मानने वाले लोग हैं, हम लोगों को गुमराह करने वाले लोग नहीं। हमने माना कि हमारी गलती हुई, हमारा फॉर्म कैंसिल हो गया। अभी उस पर किसका दोष देना है? अभी उनका यही प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं बताते कि ये हमारा फॉर्म सही था और ये फॉर्म कैंसिल क्यों हुआ? फॉर्म दिखाने के लिए बोलो ना, किस प्रकार से उनका फॉर्म कैंसिल, फॉर्म क्यों नहीं दिखाते? वो दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आधे सामने सामने डिबेट कर लेते हैं। ये सिर्फ प्रफुल्ल भाई पटेल और जो यहाँ चुनाव अधिकारी थे उनको बदनाम करने की साजिश थी, लेकिन लोगों ने देख लिया। हम मानते थे कि 2024 में लोगों को उन्होंने गुमराह किया था, खानवेल में हमको कम वोट मिले थे। लेकिन आज खानवेल की परिस्थिति देख लीजिए, आज 11 में से 11 हमने जिला पंचायत सीट जीत ली है। तो लोगों का विश्वास तो है हमारे प्रति। जो हमारे दामजी भाई कुराड़ा की आप बात कर रहे थे, मैं मानता हूँ, देखो राजनीति होती है, कभी कभी उनकी जो सीमांकन थी वो भी बदल चुका है। वो पहले अलग पंचायत में थे, अभी दपाड़ा में आए हैं, तो कुछ कारण हुए और उस कारण पे हम बात करेंगे और देखेंगे। और हमारी पार्टी हारने के बाद बैठती है, उस पर अध्ययन करती है कि किस कारण से हम हारे। हम किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे, ये हमारा क्लियर। देखो हम सभी जानते हैं, मुझे मीडिया में इस बात को नहीं बोलना था, लेकिन आपने सवाल ऐसा कर लिया कि अगर मैं नहीं जवाब दूँ तो फिर आप लोग उसको ट्वीट कर देंगे। बहन का हेल्थ का इश्यू रहता है, इसके लिए हमने कुछ बात हम नहीं, ज़्यादातर उन्होंने प्रचार में भी कम आए हैं, तो अभी वो मीडिया में बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आपने पूछ लिया, इसके लिए मैंने बोल दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कार्यक्रम में बहन हमारे साथ जाएंगे। ये बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है ना, उनको यहाँ की बात वहाँ बिहार में उठानी थी और वहाँ अपना वोट बटोरने का उनकी प्लानिंग था। आप समझ सकते हैं, मीडिया के लोग, आप जागरूक लोग हैं, उनका एक प्लानिंग के भागरूपी हुआ है। क्योंकि आज क्यों नहीं बाइट दे रहे हैं कि आज हमारे कैंडिडेट हारे कि नहीं हारे? हम किसको ब्लेम करें? हमारी कहीं कमजोरी होगी, जैसे भाई ने कहा कि हमारे दामजी भाई कुराड़ा हारे, हम हारे मानते हैं कि नहीं मानते उस चीज को? क्या हमारे दमन में 12 नंबर पे क्या हमारे उम्मीदवार नहीं हारे? क्या हारे? हमारे सबसे मजबूत सरपंच था भीमपुर का, हम हार गए। हम मरोड़ में हमारी जिला पंचायत की सीट हम हार गए। तो कहाँ दिक्कत है? कांग्रेस ने सिर्फ आदिवासियों को उपयोगी किया है, वोट बैंक के रूप में ही उन्होंने उसका उपयोग किया। आप देखिए, जब से हमारी सरकार केंद्र में आई, हम भगवान बिरसा मुंडा जी का हम जन्मोत्सव इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि आप आदिवासियों को हम ये विश्वास दिलाने में अब हम श्योर हुए कि आप देखिए 11 में से 11 जो खानवेल की बात कर रहे हैं, वो 11 से 11 हम जीत चुके हैं। आदिवासी पे हम पे विश्वास, ये कुछ लोगों का स्टंट है, कुछ लोग हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्या हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे अधिक किसी पे ध्यान देती है तो आदिवासी है और अनुसूचित जाति के लोगों पे ध्यान देती है। वो उनको अपने जो डेवलपमेंट के थ्रू कुछ न कुछ जो भी स्कीमें आती हैं प्रधानमंत्री जी की, उसमें खास तौर पे आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों पे फोकस रहता है पार्टी का। और हम आने वाले दिनों में ये भी विश्वास आपको दिलाते हैं कि हमारी जिला पंचायत में भी सरकार बनी है, हमारी नगर पालिका में सरकार बनी, हम अच्छा काम करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। जहाँ हम कमजोर हो गए वहाँ हम मेहनत